Hanji, dear students, welcome to Dot P Educators again. As we have already covered our basics of Linux in the first lecture, which was totally based on the first and second unit. So now we are going to start your third unit, which is file system hierarchy. In this unit, you will learn about the concepts of file system, directories, types of file systems, whatever. Okay, ये सारे topics आप इस unit में cover करोगे. So we will start along with the definition of file system. So now what do you understand by a particular file system under any computer system or operating system or Linux? We will elaborate it one by one. The first topic is file system, and its first point is a Linux file system is a structured collection of files on a disk drive or a partition. As we already know कि जो आपके पास फाइल्स होती हैं वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखने की, उसको मैनेज करके रखने के लिए. सो नाउ फाइल सिस्टम इज़ व्हाट. फाइल सिस्टम आपके पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक ऐसी सिस्टम होता है आपके पास जिसको हम यूज़ करते हैं आगे फर्दर अपनी मल्टीपल फाइल्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट करके रखने के लिए, एक सिस्टम में उनको मैनेज करके रखने के लिए. So that system is known as the file system. That's why we call it a structured collection of files on a disk drive. मतलब अगर आपकी जो multiple files हैं उनके collection को हम disk drive के किसी ना किसी partition के ऊपर hold करके हम उनको रखते हैं, ठीक है. A partition is a segment of memory and contains some specific data, right? जो आपका partition होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक chunk of memory, एक block of memory है जिसके अंदर आप आगे further specifically किसी amount of data को या amount of information को आप store करके रखते हो. So this was the first point, and the second point is in our machine there can be various partitions of the memory, right? आपकी machine के अंदर जो memory है उसके काफ़ी सारे partitions हो सकते हैं. And the third point is generally every partition contains a file system, right? हमारी जो मशीन है उसके अंदर जितने भी आपके पार्टीशंस होते हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलरली फाइल सिस्टम जो होता है वो रिजाइड करता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दीज पार्टीशंस यूजुअली कंटेन ओनली वन फाइल सिस्टम, राइट. जो आपके पास एक पर्टिकुलर पार्टीशन होता है वो स्पेसिफिकली एक फाइल सिस्टम को अपने अंदर स्टोर करवा के रखता है, लाइक वन फाइल सिस्टम हाउसिंग द बिन फाइल सिस्टम, ठीक है, एंड अनदर कंटेनिंग द होम फाइल सिस्टम, राइट. जो आपके पास एक पार्टीशन है उसने किसको होल्ड करके रखा हुआ, बिन फाइल सिस्टम को, एंड अनदर वन इज होल्डिंग द होम फाइल सिस्टम. सो दिस वाज द बेस ऑफ फाइल सिस्टम अंडर Linux. And the next point is types of file systems. Now, what are the various kinds of file systems which we are using under the Linux operating system? Okay, we will cover these topics one by one. So, file system types can be classified into disk file system, network file system, and special purpose file system. Right? These are the three major file systems which we use under the operating systems. It may include the disk file system, network file system, and the special file system. So the first point is disk file system. Now what is this? A disk file system is a file system designed for the storage of files on the data storage device. ठीक है, जो हमारे पास डिस्क फाइल सिस्टम होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है किस टाइप की स्टोरेज के लिए, उन फाइल्स के लिए जो कि आपकी पर्टिकुलरली कोई डिवाइस के ऊपर डाटा को आपने स्टोर करके रखना हुआ है, लाइक अ डिस्क ड्राइव जो मोस्ट कॉमनली हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं, which might be directly or indirectly connected to your computer system. So this is called the disk file system, जिसमें आपका डाटा है जो वो किसी डिस्क ड्राइव के ऊपर स्टोर करके रखा जाता है. And the next point is flash file system. A flash file system is a file system designed for storing the files on flash memory devices. Right? आपके पास ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम फाइल्स को फ्लैश मेमोरीज के ऊपर, फ्लैश मेमोरी डिवाइस के ऊपर स्टोर करवा के रखते हैं. That's why this is known as the flash file system. And these are becoming more prevalent as the number of mobile devices is increasing, right? ये जो आपका सिस्टम है फाइल सिस्टम, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेवलेंट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, बिकॉज जो आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं उनकी जो अमाउंट है और उनका जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, वो पीक पे है. दैट्स वाई दिस फाइल सिस्टम इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड अंडर अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल.
एंड द कैपेसिटी ऑफ फ्लैश मेमोरीज कैचेस अप विद हार्ड ड्राइव्स, राइट। ये इनकी जो आपकी होती है कैपेसिटी होती है वो हार्ड ड्राइव्स की इक्वल मानी जाती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज डेटाबेस फाइल सिस्टम। Now, what is database file system? As we already know, the database is what it is a collection of huge amount of data. So that's why जो आपकी files होंगी इसके अंदर उसी के साथ related होंगी. A new concept of file system is the concept of database file system. Okay, in this system, instead of hierarchical structured management, files are identified by their characteristics like type of file, topic, author, or similar metadata. For example, DBFS. जो आपका डेटाबेस फाइल सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, हम लोग डाटा को स्टोर करके रखते हैं बट उसको आइडेंटिफाई किस बिहाफ पे किया जाता है, उसके मतलब उसकी फाइल किस टाइप की है, उसका टॉपिक कौन सा है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस फाइल एंड व्हाट इज द सिमिलर मेटाडाटा व्हिच इज रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ डाटा. सो इन दिस सिस्टम वी डोंट ऑर्गेनाइज डाटा और इंफॉर्मेशन इन हायरार्किकल मैनर और पेरेंट चाइल्ड relationship. Okay, so this is known as the database file system. And the next point is transactional file system. Now transaction is what? It is a unit of operation. जैसे हम सबको पता है कि आपके पास जो जैसे बैंक अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे आपकी मनी जो होती है आप डिपॉजिट करवाते हो, विथड्रॉ करवाते हो, तो वहाँ पे आपकी एक जो एक्शन परफॉर्म होता है, एक यूनिट ऑफ ऑपरेशन जो एग्जीक्यूट होती है, दैट इज नोन एज द ट्रांजेक्शंस. एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपने मनी डिपॉजिट करवाई तो एक अकाउंट में से आपकी मनी जो है वो डिक्रीज हुई है, दूसरे में वो इंक्रीज हुई है, दैट इज नोन एज अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन. सो द डाटा विच इज रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शंस दैट इज नोन एज द transactional data and the file system which holds the information related to these transactions. This is known as the transactional file system. So here I have elaborated its example and its description. Each disk operation may involve changes to a number of different files and disk structures, right? आपके पास जितने भी ऑपरेशन होते हैं अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है तब कहीं ना कहीं आपकी फाइल्स के अंदर आपके डिस्क स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना कोई चेंज जो होता है वो अराइज होता है. In many cases these changes are related, meaning that it is important that they all be executed at the same time, right? ऐसा होता है कई बार जो जितने वो भी चेंजेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर डाटा के साथ रिलेटेड है, लेकिन कई बार क्या होता है वो सारे के सारे एक सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली जो होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं. For example, a bank sending another bank some money electronically, right? The banker's computer will send the transfer instruction to the other bank, ठीक है, and also update its own records to indicate the transfer has occurred, right? If for some reason the computer crashes before it has had a chance to update its own records, then on reset there will be no record of the transfer but the bank will be missing some money. So ये आपके पास चीज होगी, एक बैंक ने डाटा को ट्रांसफर किया मतलब मनी ट्रांसफर की, तो वहाँ पे क्या हुआ वो अपने जो उन्होंने अपने ओन जो रिकॉर्ड्स थे जो अपने सिस्टम के ऊपर उन्होंने अपडेशंस करके रखनी थी वो ड्यू टू क्रैश वो प्रॉपरली उनकी अपडेशंस नहीं हो पाई, वो बीच में ही स्टॉप हो गई. उनकी मनी जो है वो ट्रांसफर हो गई है लेकिन दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑफ दैट ट्रांजेक्शन. सो हियर द बैंक इज ऑल्सो मिसिंग सम मनी. Okay, transaction processing introduces the guarantee that any point while it is running, a transaction can either be finished completely or reverted completely. ठीक है, तो आपके पास जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होती है उसके साथ आपको इस चीज़ की गारंटी हो जाती है कि हाँ अगर कोई काम रन हो भी रहा है, एग्जीक्यूट हो भी रहा है, या तो एक ट्रांजेक्शन जो होती है वो कम्प्लीटली फिनिश होएगी या फिर वो प्रॉपरली आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रिवर्ट की जाएगी. क्योंकि जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होती है इसमें आपकी एसिड प्रॉपर्टीज़ बहुत मैटर करती हैं. एसिड प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आपकी ट्रांजेक्शन्स के साथ रिलेटेड होती हैं, जो आपके डाटा को जो आपका क्रैश हुआ है या फिर आपका जो डाटा है वो कोलैप्स हो गया उसकी रिकवरी भी आपकी जो होती है वो कई बार श्योर की जाती है, और अगर वो ना भी हो तो एटलीस्ट आपके लॉसेस जो होते हैं वो रिकवर हो सकते हैं. This means that if the data is crash or power failure after recovery, the stored data will be consistent, right? इन प्रॉपर्टीज की मतलब वजह से आपका जो डाटा होता है वो आपको कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट फॉर्म में वापस मिल जाता है. And the next file system is network file system.
A network file system is a file system that acts as a client for a remote file access protocol, providing access to files on a server. Right, जो आपके पास network file system होता है वो मतलब as a client आपके पास act कर सकता है for connecting to the remote file. मतलब कि इसकी हेल्प से आप एक पर्टिकुलर कोई जो डेटाबेस है जहाँ जो आपका डाटा है या आपके प्रोटोकॉल्स की हेल्प के साथ वो जो रिमोट मशीन है उसको असेस कर सकता है, मतलब वहाँ के डाटा को असेस करवाने में आपकी हेल्प करवाता है. सो दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स असेस टू फाइल्स ऑन अ सर्वर. राइट, नेटवर्क फाइल सिस्टम की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो सर्वर के ऊपर डाटा पड़ा है या आपके जो फाइल्स उसके ऊपर ऑर्गेनाइज की गई हैं उनको आप इजीली असेस कर सकते हो विद ईज ऑफ कन्वीनियंट. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम. Now what is the special purpose file system? जो हमने पहले जो आपके फाइल सिस्टम जो हमने पढ़े, these were based on some special kinds like network file system, database file system. Special purpose file system is which is basically used for some special purpose, except those file system that we have elaborated. Now, a special purpose file system is basically any file system that is not a disk file system or network file system. तो ये उनके साथ related नहीं है जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं. This includes systems where the files are arranged dynamically, intended for such purposes like communication between computer processes or temporary file system. तो इसमें जो आपका डाटा होता है वो डायनामिकली आप अरेंज करके रखते हो, और ये स्पेशली कौन से पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए. किन के कम्युनिकेशन के लिए? मल्टीपल प्रोसेसेस के कम्युनिकेशन के लिए, या हम इसको एज अ टेम्पररी फाइल सिस्टम भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. So this was the topic of file system and some special file system that we use under the operating systems or Linux system. So the next topic in your unit is file systems and operating system, right? Why do the operating systems and file systems are correlated with each other? Okay, the first point is most operating systems provide a file system. We know that हर एक जो operating system होता है वो आपको एक file system offer करता है. As a file system is an integral part of any modern operating system, right? आपके हर एक operating system के साथ related आपका एक particular file system होगा जो आपके modern operating systems में भी matter करता है या उनमें reside करता है as an integral part, मतलब वो उनका एक major part माना जाता है. And the second point is some early operating systems had a separate component for handling file systems which was called a disk operating system, right? जो आपके earlier time के ऊपर operating system use किए जाते थे उनमें आपके पास special component होता है था किस चीज़ के लिए? आपके file systems को handle करने के लिए. तो उसको हम क्या बोलते थे? disk operating system, जिसको हम DOS भी के नाम से भी refer करते थे. And the third point is because of this there needs to be an interface provided by the operating system software between the user and the file system, right? उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आपको एक किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी? आपके एक इंटरफेस की, किसके बीच में? यूज़र के बीच में और एक फाइल सिस्टम के बीच में. सो दिस इंटरफेस कैन बी टेक्सचुअल, राइट? या तो वो इंटरफेस जो है वो टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकता है और इट कैन बी इन द ग्राफिकल फॉर्म. टेक्सचुअल फॉर्म के लिए हम लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम कई बार CLI के नाम से भी रेफर करते हैं. फॉर ग्राफिकल पर्पसेस वी यूज द GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम which is graphical user interface which is purely based on your Windows operating systems. Okay, and the next point is flat file systems. In a flat file system there are no subdirectories. Everything is stored at the same level on the media and it can be a hard disk or floppy disk, right? आपके जो फ्लैट फाइल सिस्टम्स हैं उनमें हम लोग कोई सब डायरेक्टरीज आगे फर्दर नहीं यूज़ करते हैं. जितना भी डाटा होता है वो सेम लेवल के ऊपर, मतलब रूट लेवल के ऊपर ही उसको स्टोर किया जाता है, जो कि आपके या तो हार्ड डिस्क हो सकती है या फिर आपकी फ्लॉपी डिस्क में भी हो सकता है. And the last point is while simple, this system rapidly becomes inefficient as the number of files grows and makes it difficult for users to organize data into little groups, right? हालांकि इसको हम बोलते हैं कि एक आपका सेम लेवल के ऊपर डाटा स्टोर किया गया है, but it becomes inefficient and sometimes it is considered to be very difficult because it makes it difficult for users to organize their data, to simplify their data
into some related groups because users are not able to store or organize their data or view their data in a simplest form or in a systematic manner. So these were some points which were related to your file systems and operating system. Now here is an important topic which is related to your unit, which is file system hierarchy. So this is file concept. Now file is what? आपके पास जो फाइल है, हम लोग बात कर रहे हैं फाइल सिस्टम्स की या टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स की. तो अगर हम बात करें कि what is a file in any operating system or any computer system. So a file is a named collection of related information that is recorded on secondary storage like magnetic disks, magnetic tapes and optical disks. जैसे हम जनरल लाइफ की बात करें, हम लोग फाइल्स को यूज़ करते हैं आगे फर्दर आपकी डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने के लिए. तो सिमिलरली आपके जो फाइल्स के अंदर आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग फाइल्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या होती हैं? आपके पास एक तरह की नेम्ड कलेक्शन, मतलब अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स of data of information that is recorded on a particular storage media. तो आप अपनी फाइल को एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा भी बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हो, जिसको आपने स्टोर करके रखा हुआ है किसी भी एक पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम के ऊपर. डन. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलमोस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मस्ट बी इन अ फाइल. राइट, हमें पता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर के अंदर उसको स्ट्रक्चर करके रखा हुआ है, उसको मैनेज करके रखा हुआ है. तो हर एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपके जो डाटा होता है उसको स्टोर करके रखने के लिए हम लोग फाइल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स. कौन कौन सी हो सकती है? लाइक टेक्स्ट फाइल्स हो सकती हैं, डेटा फाइल्स हो सकती हैं, प्रोग्राम फाइल्स हो सकती हैं, डायरेक्टरी फाइल्स हो सकती हैं, एंड मल्टीपल फाइल सिस्टम्स आर ऑल्सो देयर in your computer system. So now we are moving to the next topic in your unit, that is assess method. Assess is what? Assess can be depicted as a way through which we use or retrieve or fetch some information from any particular media. So there are different kinds of methods which are used to assess the information from your files. So there are several ways that the information in the file can be assessed. Some systems provide only one assess method for files. On other systems, many different assess methods are supported. Okay, so here are some major assess methods that we use under the operating system or a Linux operating system. The first one is sequential assess. Sequential is what? This is based on the linear method. Sequential और लीनियर बोथ आर इक्वल. लाइक अगर हम बात करें आपने सिक्वेंशली या लीनियरली डाटा को असेस करना है, तो आप क्या करोगे? एक सीक्वेंस के अंदर आप उस डाटा को फेच करोगे, लाइक वन आफ्टर अनदर. इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर, वन रिकॉर्डर आफ्टर द अनदर. ओके, सो इसमें आप एक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली अपने जो डाटा है उसको आप फेच करते हो या उसको प्रोसेस करते हो. And the second point is this is by far the most common mode of assess of files. For example, computer editors usually assess files in this fashion. Right? इसको हम सबसे common, सबसे easy, सबसे easiest method हम मानते हैं, क्योंकि maximum जो आपके computer systems हैं उनके अंदर इसी fashion और इसी system के through डाटा को जो है वो assess किया जाता है. And the third point is a read operation reads the next portion of the file and automatically advances the file pointer. Right? जो आपका read operation क्या होता है वो क्या करता है? आपकी जो next portion होता है information का उसको read करता जाता है अपनी फाइल के next portion को assess करते जाना and अपने pointer को आगे further advance करते जाना कि जो portion अभी read किया जा रहा है आपका pointer उससे next वाले record को आगे फर्दर पॉइंट करें, ताकि आप एक सिस्टम के अंदर आपके डाटा को आप वन बाय वन असेस करते जाओ. सो दिस वाज द सीक्वेंशियल असेस. एंड द नेक्स्ट इज डायरेक्ट असेस. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सीक्वेंशियल वन. The first point is direct assess is based on a disk model of a file. Right?
ठीक है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज फॉर डायरेक्ट एक्सेस द फाइल इज व्यूड एज अ नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक और रिकॉर्ड्स. राइट, अगर आपको डायरेक्ट एक्सेस करना तो ऑब्वियसली देयर शुड बी सम सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स और रिकॉर्ड्स. अ डायरेक्ट एक्सेस फाइल अलाउज आर्बिट्रेरी ब्लॉक्स टू बी रीड और रिटन. आप डायरेक्ट एक्सेस के अंदर जो आपके ब्लॉक्स होते हैं उनके ऊपर आप कौन से रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन जो है वो उनको परफॉर्म करते हो. मतलब यहाँ पे आप रैंडमली डाटा को एक्सेस कर सकते हो. थर्ड पॉइंट इज दस आफ्टर ब्लॉक 18 हैज बीन रीड. अगर आपने 18 जो डाटा है उसको आपने रीड कर लिया हुआ है आपके पॉइंटर में, then after that block 57 could be next, right, because this is the direct access. इसमें आप वन बाय वन नहीं चलोगे, इसमें आप लोग रैंडमली किसी भी रिकॉर्ड को आगे फर्दर फेच कर सकते हो जिसकी आपके पास रिक्वेस्ट आई है. एंड देन ब्लॉक 3. सो दिस वाज द बेसिक मेथड दैट इज यूज्ड in the direct access. There are no restrictions on the order of reading and writing for a direct access file, right? Direct access file के अंदर या direct access method के अंदर यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपने one after another sequential method में ही डाटा को access करना है. आप randomly डाटा को choose करते हो, उसको पिक करते हो कि कौन से रिकॉर्ड को आपने आगे further fetch करना है. And the last point is direct access files are of great use for intermediate access to large amounts of information. राइट, जो आपके डायरेक्ट एक्सेस फाइल्स हैं वो मतलब काफ़ी मेजॉरिटी के अंदर उनको यूज़ किया जाता है क्योंकि आपके पास अगर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वहाँ पे आप इजीली इसको एक इजी वे में आप डाटा को असेस कर सकते हो. एंड some other methods that you can also use, other access methods can be built on the top of a direct access method, right? These additional methods generally involve the construction of an index for a file, right? जो आपके हमने भी sequential या direct method पढ़े हैं, access methods पढ़े हैं, उनके बिना हमारे पास कौन से other methods हो सकते हैं. They can be some index method जहाँ पे आप indexes use कर सकते हो अपनी files के लिए. And the index also contains pointers to the various block, right? ठीक है, आपके जो इंडेक्स होते हैं जैसे वो आपकी बुक्स के अंदर काम करते हैं, आपके फ्रंट पेज पे आपका बुक का ईयर पे एक इंडेक्स होता है. एंड इंडेक्स ऑलवेज इंडिकेट्स यू एट विच पर्टिकुलर पेज नंबर योर लेसन इज केप्ट ऑन. सो जो आपका ये अदर मेथड है, इसके अंदर जो आपके इंडेक्स्ड मेथड्स हैं वो आपको एक इंडेक्स के अकॉर्डिंगली डाटा को कंटेन करके रखने के लिए और डाटा को असेस करने के लिए वो आपकी हेल्प करते हैं. टू फाइंड एन एंट्री इन द फाइल द इंडेक्स इज सर्च्ड फर्स्ट, राइट? आप सबसे पहले अपने इंडेक्स को सर्च करते हो जैसे हम लोग अपनी बुक्स में करते हैं कि हमारा चैप्टर कौन से नंबर के ऊपर पढ़ा है, कौन से पेज नंबर के ऊपर पढ़ा है. सबसे पहले आपका इंडेक्स यहाँ पे फेच किया जाता है, उसको सर्च किया जाता है. एंड देन द पॉइंटर इज यूज्ड to assess the file directly to find the desired entry, राइट. फिर आपका पॉइंटर जो होता है वो आपकी फाइल को असेस करता है किस चीज को, आपकी डिजायर्ड लोकेशन या डिजायर्ड एंट्री को सर्च करने के लिए. So these are the other assess methods. Now here we have next topic in your unit, that is line directory structure. So directory is what? आपके पास अब डायरेक्टरी भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है विच इज सिमिलर टू सम फाइल्स. ओके, एंड द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स इनटू अ हायरार्की ऑफ फोल्डर्स, राइट. जो आपकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपकी जो फाइल्स हैं उनको मैनेज करके रखा जाता है, उनको ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, बट किस फॉर्म में? इन द मॉडल और इन द वे ऑफ हायरार्की. जैसे हम आपका सबसे ऊपर क्या होएगा, रूट होएगा, उसके बाद उसके आगे फर्दर चिल्ड्रन होंगे. सो उस फॉर्म में आपका जो डाटा है उस मैनर के अंदर उसको स्टोर करके रखा जाता है. अ डायरेक्टरी इज अ लोकेशन फॉर स्टोरिंग फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है. सो ये आपके पास एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे फाइल्स को स्टोर करके रखा जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. डायरेक्टरीज आर फाउंड इन अ हायरार्किकल फाइल सिस्टम लाइक लाइनक्स, MS DOS एंड यूनिक्स. इसके अंदर आप लोग हायरार्किकल फाइल सिस्टम के अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हो. एंड द टिपिकल कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टरी आर, मतलब आपकी जो डायरेक्टरी है उसके साथ रिलेटेड कौन सी चीज़ें हो सकती हैं. द फर्स्ट वन इज फाइल नेम. जो फाइल नेम है वो क्या है? एक तरह की स्ट्रिंग है जो आपके पर्टिकुलरली फाइल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड द टाइप, मतलब आपका जो टाइप है वो आइडेंटिफायर किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपकी फाइल्स कौन सी टाइप की हैं. whether these are binary files or these are executable files or text files, okay. And organization क्या करती है, वो आपको क्या बताती है कि for systems that support different organizations, right, in which manner your data is organized or it
should be kept. And the next point is device, right, where the file is physically stored. डिवाइस आपको क्या बताती है, जहाँ पे आपका डाटा जो है वो फिजिकली स्टोर करके रखा गया है. एंड द नेक्स्ट इज साइज, राइट, साइज आपको क्या बताता है कि कितने ब्लॉक्स जो हैं वो आपके डाटा के अंदर या आपके फाइल के अंदर स्टोर किए गए हैं. एंड स्टार्टिंग एड्रेस ऑन डिवाइस, राइट, आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो आपको बताता है कि आपका मतलब फिजिकली जो फर्स्ट पॉइंटर है फाइल का, मतलब या फर्स्ट जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पे लोकेट किया गया है. एंड द नेक्स्ट वन इज क्रिएटर ओनर असेस इंफॉर्मेशन, राइट, आपकी फाइल का क्रिएटर कौन है, उसका ओनर कौन है, या उसकी इंफॉर्मेशन को कौन असेस कर सकता है, किसको उसकी परमिशंस दी गई हैं. सो हु इज अलाउड टू असेस द फाइल, और हु हैज द परमिशंस और प्रिविलेजेस टू असेस दोज फाइल्स. So this is the basic concept of creator, owner and assess information. And the last one is date of creation or of last modification, right. This point tells you and at which particular day or at which time your file was modified or it was created recently. So in this diagram here is a structure which shows यू द लाइनेक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, मतलब किस मैनर में जो है आपकी इंफॉर्मेशन जो स्टोर करके रखी जाती है अंडर द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. सो हियर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट विच इज फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर. तो आपके पास जो फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर है वो क्या है. The file system structure is the most basic level of organization in an operating system, right? ये आपकी सबसे बेसिक जो level of organization है माना जाता है किसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. So almost all of the ways an operating system interacts with its users, applications and security model are dependent upon the way it organizations files on storage devices, right? जो आपके जैसे आपके users interact करते हैं files के साथ, फाइल एप्लीकेशंस के साथ या ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशंस के साथ, एंड आपके जो सिक्योरिटी मॉडल्स हैं वो, ये दोनों चीज़ें किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फाइल्स ऑन योर स्टोरेज डिवाइसेस, वो किस मैनर के अंदर उनको स्टोर करके रखा गया है. And providing a common file system structure ensures users and programs are able to access and write files, right. आपका कौन सा फाइल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है जिसको आपने यूज़ किया जाता है वो आपको क्या श्योरिटी देता है कि आपके यूजर्स या प्रोग्राम्स हैं वो कितना इजीली या कितने एबल हैं आपके डाटा को असेस करने के लिए या फिर उसके ऊपर डाटा को राइट करने के लिए. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर. सो फाइल सिस्टम ब्रेक्स फाइल्स डाउन इनटू टू लॉजिकल कैटेगरीज. तो आपका जो फाइल सिस्टम है आपकी फाइल्स को वो दो लॉजिकली कैटेगरीज में डिवाइड करता है. कौन सी होती हैं वो? द फर्स्ट वन इज शेयरेबल वर्सेस अनशेयरेबल एंड द सेकंड वन इज वेरिएबल एंड स्टैटिक फाइल्स. ओके, द फर्स्ट वन इज शेयरेबल फाइल्स. These are those that can be accessed locally and by remote hosts. राइट, जो आपकी शेयरेबल फाइल्स हैं वो कौन सी फाइल्स हैं जो लोकली भी उनको असेस किया जा सकता है या शेयर किया जा सकता है या फिर आगे फर्दर रिमोट लोकेशंस को जो होस्ट करते हैं वो भी उनको शेयर कर सकते हैं. एंड अनशेयरेबल फाइल्स आर ओनली अवेलेबल लोकली, जो आपके सिर्फ लोकली बिहाफ पे ही जिनको आप शेयर कर सकते हो, रिमोट बेसिस पे नहीं कर सकते. एंड द नेक्स्ट वन इज वेरिएबल फाइल्स. आपके वेरिएबल फाइल्स कौन सी होती हैं? लाइक डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम. जो आपकी वेरिएबल फाइल्स होती हैं मतलब उनका क्या मतलब होता है, वो एक तरह की डायनामिक फाइल्स होती हैं जिनको आप किसी पर्टिकुलरली पॉइंट के ऊपर आप उनको चेंज कर सकते हो, उनको मॉडिफाई कर सकते हो. बट स्टैटिक फाइल्स आर व्हाट? These are like binary files that don't change without an action from the system administrator. उसको आप किसी भी पॉइंट के ऊपर वैसे बार बार चेंज नहीं कर सकते. इट कैन ओनली बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ योर यूनिट एंड दिस वाज द एंड ऑफ योर third unit, which was file system hierarchy. I hope all the topics are fully elaborated in this unit. So this was the end of this unit. Thank you so much.